نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 3. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 1 کے پریکٹس سیشن میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارا بیچ 3 اسٹارٹ ہو گیا اسموتھلی. بڑا شکر ہے اس کی ذات کا کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں سب, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے والوں میں سیکھنے والوں میں شامل رکھے اور ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے, آمین. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. لیکچر آپ لوگ سن چکی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا تھا, آپ نے ماشاءاللہ نوٹس بھی بنائے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس نے شیئر بھی کیے پرسنل میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے. اچھا, آج ہم پریکٹس کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو لیکچر 1 میں پوائنٹس یا سلائڈس شیئر کی تھی ایک ریکیپ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکچر 1 میں ہمارے ٹاپک کیا تھے وہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس میں سیکھا تھا اسم کا تعارف اور الف اور حمزہ کا فرق. پریکٹس بھی ہماری اسی کے بیچ میں ہی رہے گی. ٹھیک ہے, ہم اس سے ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جہاں سے ایک زبان شروع ہوتی ہے, ایک لینگویج کا آغاز ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے حروف, لیٹرز. تو عربی میں ان لیٹرز کو حروف الہجا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جسے انگلش میں آپ لوگ الفابیٹس کہتے ہیں اور اردو میں ہم ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. ٹھیک, حروف الہجا آپ کے نالج میں ہے, آپ نے ان کو نوٹ بھی کیا تھا اور ان کی ادائیگی بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی جاتی ہے. رائٹ. اس کے بعد دیکھیے حرکات کیا ہوتی ہیں. حرکات زبان کی جو ہے وہ بیس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حرکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو لفظ ادا کیا ہے اس کو کس طرح سے مزید اس کو ہم لوگ انہینس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہے حرکات میں 2 چیزیں آئیں گی آپ کے پاس. آپ کو حرکات ملیں گی اور تنوین ملے گی. ٹھیک ہے, اب حرکات کیا ہے؟ یہ زیر زبر پیش جو ہوتی ہیں یہ حرکات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسک ہیں. زبر زیر پیش یہ بیسک حرکات ہیں. پھر آتی ہے اس کے بعد تنوین. تنوین کیسے ہے؟ اس طرح سے آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ الفاظ پہ, ابھی میں صرف الفاظ یوز کروں گی, کچھ الفاظ پہ آپ کو اس طرح سنگل حرکت ملتی ہے, زبر کی, زیر کی, پیش کی. کچھ ایسے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے جس پہ آپ کو یوں زبر ملے گی لیکن ڈبل, جسے تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو یوں 2 زیر کی تنوین بھی مل سکتی ہے اور 2 پیش کی بھی تنوین مل سکتی ہے. اس کی جو پراپر ٹرمز ہے نا وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے, زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے, پیش کو دمہ کہا جاتا ہے. رائٹ. اس کے بعد جب سنگل ہے, جب یہ ڈبل ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو کیسے کال کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس 2 زبر کی تنوین آئے گی تو اس کو فتحتین کہا جاتا ہے, 2 زیر کی تنوین کو کسرتین کہا جاتا ہے اور 2 پیش کی تنوین کو دمتین کہا جاتا ہے. یہ چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. جو پراپر عربک ٹرمز ہیں وہ آپ کے نالج میں ہوں گی تاکہ آپ اگر کسی بک سے کنسلٹ کرتی ہیں, کوئی آپ کسی ایڈوانس گرامر میں جاتی ہیں بیسک گرامر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد, تو آپ کے پاس نالج مکمل ہونا چاہیے. اب جن آپ کو جس حرف پر زبر ملے وہ حرف کہلاتا ہے مفتوح. فتحہ سے نکلا ہے مفتوح. جس پر آپ کو زیر ملے گی وہ کہلائے گا مکسور,
और जिस पर आपको पेश मिलेगी वो कहलाता है मजमूम। मीम ज़्वाद मीम वाओ मीम, मजमूम। ठीक है, ये तो एक छोटा सा आपके सामने हरकत का रिकैप हो गया। हरकत के अलावा एक अहम अलामत है सुकून की अलामत कहते हैं इसे। ठीक है, ऐसे लिखे जाते हैं, या तो वो आपको यूं गोल दायरे की सूरत में मिलेगी, या आपको वो छोटी सी दाल लिखी होती है उस सूरत में मिलेगी। ठीक है, ये हो गई अलामत सुकून। अलिफ और हमजा में फर्क क्या है? देखिएगा, अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती, लेकिन अगर इस पर कोई हरकत जबर जेर पेश आ जाए तो वो हमजा कहलाता है। अलिफ सिंपल, ये अलिफ, इसे खाली अलिफ भी बोला जाता है। ठीक है, अब जब इस पर कोई हरकत आपको मिलेगी तो फिर वो हो जाएगा हमजा। इसको लिखने के ये दो तरीके हैं। जो आपको कोई अरबी मुसहफ मिलेंगे वहां पर आपको ये इस तरह से छोटी सी हमजा डली होगी अलिफ के ऊपर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और कई जगहों पर आपको सिर्फ अलिफ के ऊपर फतहा की अलामत मिलेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ जैसे ये जेर आ गई, कसरा आ गई, इधर पेश आ गई, तो ये हमजा है। बगैर हरकत के होगा तो वो सिर्फ अलिफ कहलाएगा, खाली अलिफ, और अगर उस पर आपको कोई हरकत मिल गई तो फिर वो बन जाएगा हमजा। सिर्फ ये फर्क है अलिफ और हमजा का, ये आपको बेसिक याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके सामने आया अल किताबू। ठीक, अलिफ पर कौन सी हरकत आपको नजर आ रही है? ये है जबर, फतहा। आगे देखिए लाम, लाम पर ये अलामत सुकून है। मैंने आपको भी बताया, या तो वो छोटे से दायरे की सूरत में मिलेगी, या इस तरह से एक छोटी दाल की शक्ल में, इसको अलामत सुकून कहा जाता है। ठीक, काफ पर देखिए आपको जेर मिल रही है। अल किताब, ता पर आपको देखें जबर मिल रही है। ठीक है, अब इसको अगर मैं मुकम्मल हरकत के साथ पढ़ूं तो ये बनेगा अल किताबू। बा पर आपको पेश मिल रही है। ठीक है, ये है। अब हर लफ्ज में जो है जबर जेर पेश की पोजीशन डिफरेंट होगी, वो उसके हिसाब से होगी। ठीक है, अब ये जो अलिफ है, ये अलिफ है या हमजा, ये मुझे मैसेज में आप टेक्स्ट करके बताइएगी। ये अलिफ है या हमजा, इसके बाद अल की ता के बाद आपको अलिफ मिल रहा है या हमजा मिल रहा है, ये पहचान आपने रखनी है। देखते हैं आप लोग क्या कह रही हैं। पहला वाला क्या होगा? हमजा। ठीक है, और जो सेकंड ता के बाद आ रहा है उसको मुझे टाइप करके बताएं, वो क्या आएगा? अलिफ। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। बिल्कुल, ये पहचान आपने छोटी सी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, देखिएगा लफ्ज क्या है, लफ्ज की डेफिनेशन क्या है। लफ्ज की पहले तो दो टाइप्स हैं, लफ्ज की दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मल। मुहम्मल क्या है? एक ऐसा लफ्ज जो बेकार है, यानी जिसके कोई मायने नहीं होते। और कलमा की डेफिनेशन है किसी बामायनी लफ्ज को कलिमा कहते हैं। ठीक है? अब जब हमारे सामने कलमा आ गया तो फिर इसकी तीन अकसाम हैं कलमा की। इसम, फेल, हर्फ। इसम को क्या कहते हैं? नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी जगह, शख्स या उसकी सिफ्त के नाम को हम इसम कहते हैं। ठीक है, किसी जगह, शख्स या उसकी सिफ्त का नाम। फिर इसकी इसी में एक एडिशनल पॉइंट ये भी है, काम करने का मफहूम पाया जाए मगर जमाना नहीं। अच्छा, इसको मसदर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे लिखा है चलना। ठीक है, तो ये मसदर है, खाना, पीना, सोना, बैठना। और जो मसदर है, मसदर कहते हैं नेम ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे चलना नेम ऑफ एक्शन है, खाना नेम ऑफ एक्शन है, पीना नेम ऑफ एक्शन है, पढ़ना, लिखना, ये सब जो है मसादिर हैं, मसदर हैं। ठीक है, अब इनमें काम करने का मफहूम पाया जा रहा है। चलना है तो उसमें क्या काम है? आप चल रहे हैं। खाना, उसमें आपका खाने का मफहूम।
जमाना नहीं। और जमाना क्या होता है, इसको जहन में रखिएगा। जमाना कहते हैं जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये जमाना कहलाता है। ठीक है। अब ये चलना, खाना, पीना, सोना, लिखना, इनमें आपको कोई जो है जमाना नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। तो इसम की जो बेसिक डेफिनेशन है, किसी शख्स, जगह या उसके सिर्फ के नाम को या मस्दर को हम इसम कहते हैं। ठीक है। फेल क्या है? काम का करना जाहिर हो और तीनों जमानों में कोई जमाना पाया जाए, जैसे वो गया। अब मैंने आपको जमाना कौन कौन से बताए अभी, वो माजी, हाल, मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एग्जाम्पल मैंने क्या दी, वो गया या वो जाएगा, फातिमा खाना खाएगी। ठीक है। ये सब फेल कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि उसमें काम के साथ साथ आपको जमाना भी मिल रहा है। हर्फ, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन, इनको दोनों तरह से लिखा जाता है, इसे पार्टिकल भी कहते हैं। हर्फ क्या है? मायने किसी दूसरे कलमे से मिलकर जाहिर हो। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, से, तरफ, में, ये सब हर्फ के एग्जाम्पल है। अब हर्फ जो है ना, वो या तो फेल के साथ मिलके कॉम्बिनेशन बनाता है, फिर उसका मीनिंग क्लियर होता है, या वो नाउन के साथ आता है, फिर उसका मायने जो आपको वाज़ेह होगा। इंशाल्लाह ये हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो इसम फेल हर्फ की बेसिक जो आपको एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो आपके पास ये है। इसम के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन, ये क्या है? क्योंकि हमने ग्रामर स्टार्ट की, तो हमने सीखा कि कलमा तीन तरह का है, इसम फेल हर्फ। अब हमने इनको वन बाय वन करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जो अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, वो हम इसम से करेंगे। ठीक है। इसम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसमें कुछ अस्मा को सीखेंगे, फिर हम कुछ जो है आगे उसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बेसिक कहने का मेरा मतलब है, पहले हम इसम की स्टडी करेंगे, फिर हम फेल की स्टडी करेंगे, और जो हर्फ है वो इसके साथ साथ पैरेलल चलता जाएगा। ठीक है। जहां जहां हमें बीच में उनकी इसम के साथ इस्तेमाल मिलेगा, फेल के साथ इस्तेमाल करेगा, तो इसके साथ साथ वो चलता जाएगा। अब इसम फेल हर्फ को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकती हैं। ठीक है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ती हैं, इसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और अरबी ग्रामर में ये तीन ही हैं, इसम फेल हर्फ। अब जब तक आपको इसम के बारे में उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप उससे कोई नया कोई कंपाउंड, कोई मुरक्कब नहीं बना सकेंगी, आप उससे कोई जुमला कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो हमें इसम को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी चार चीजें हैं जिन्हें एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन कहा जाता है, उसको सीखना है। अब मैं अजान का ब्रेक ले लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसम की चार चीजें कौन सी हैं, वो आप मेन लेक्चर में समझ चुके हैं। क्या क्या हमें सीखना है इसम के बारे में? सबसे पहले हमें उसकी जिन्स, जेंडर मालूम होनी चाहिए कि वो इसम मुजक्कर है या मोअन्नस है। फिर हमें सीखना है उसका अदद, यानी वो वाहिद, मुसन्ना या जमा है। मुसन्ना का मतलब क्या है कि दो के लिए जो हम लोग यूज करेंगे नंबर, उसे मुसन्ना या डुअल भी कहा जाता है। ठीक है। फिर हमें इसम की वुसअत, कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए कि वो मारफा है या नकरा है। लास्ट में हमें उसका एराब, स्टेटस मालूम होना चाहिए कि वो रफा, नसब या जर है। ये चार चीजें हैं, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे, फिर आपको जो है इसको मजीद समझने में आसानी होगी। आज हम सिर्फ अपनी इसम की पहचान को लेकर चलेंगे। इसम की बुनियादी अलामतें, इसम की दो बुनियादी अलामतें हैं। नंबर वन, तनवीन, इसम के आखिर में आती है और उसको आम यानी कॉमन करती है। फॉर एग्जाम्पल, किताबुन, अब इसके आखिर में देखिए आपको ये तनवीन मिल रही है। ठीक है। अबुक, अब यहाँ मैंने जो बात की वो एक आम किताब की है, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है। एक्स वाई जी, कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट की। फिर अल, ये इसम के शुरू में लगता है और उसको खास या प्रॉपर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अल किताबु, द बुक।
ٹھیک ہے. انگلش میں آپ کو جو ہم دا کا یوز کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک، کہ کسی چیز کو ہم خاص کرنے کے لیے دا استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ رول عربی میں ال پلے کرے گا. کسی بھی چیز کو جب آپ نے پراپر ناؤن بنانا ہے تو آپ اس کے ساتھ ال لے آئیں گے. یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ آ کے اس کا یوز سیکھیں گے. اسم کی پہچان، لفظ کے آخر میں ہمیں 4 چیزیں نظر آئیں گی تو وہ اسم ہو سکتا ہے. پہلی تنوین، راجولن. لفظ کے شروع میں ہمیں ملے گا القلم. تنوین ہمیشہ آپ کو آخر میں ملے گی. لفظ کے آخر میں آپ کو ملے گی گول تا، جسے تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل جنتن. پھر لفظ کے آخر میں آپ کو الف اور تا ملے گا. آیاتن. ٹھیک ہے. اب یہ جو یہاں پر آپ کو دمہ تین مل رہی ہے یا دو پیش کی تنوین مل رہی ہے، ادھر آپ کو سنگل حرکت بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو 2 زیر کی تنوین کسرتین اور اس کے علاوہ آپ کو فتحتین بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی آپ جب پہچان کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. چلیں پریکٹس کے لیے ہینڈ ریز کیجئے. اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پریکٹس کو. جو اسٹوڈینٹس پریکٹس کرنا چاہ رہی ہیں آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے تو میں جو سیکوینس مجھے شو ہوگا میں آپ کو اس سیکوینس سے بلاتی جاؤں گی. جی زہرا انمیوٹ کیجئے مائک کو. جی دیکھیے گا آپ کے سامنے آیت ہے، اس میں آپ کوئی اسم کی کوئی اسم مل رہا ہے. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اسم کی جو بنیادی میں نے 2 علامتیں بتائی ہیں کہ آپ کیسے جی رکھیں گے وہ کون تنوین اور ال. تنوین اور ال رہنا ہے اس میں. اب کیا آپ کو اس میں کوئی مل رہا ہے اسم اس آیت میں؟ اولئک ما یکسبون. اس میں تنوین اور ال تو نہیں دکھ رہے ہیں. ال اولئک ماواہم النار بما کانوا یکسبون. النارو. اگر میں اس کو چلیں اس پر میں حرکت لگاتی ہوں، النارو کیا لگ رہا ہے اب آپ کو یہ؟ لیکن ادھر لام تو نہیں پڑھتے ہیں نا، الف لام. اگر وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہے تو ال نا، ال ہے نا. جی ٹھیک ہے. جی ہے. ہاں اب ہاں کیا یہ کیا کس کیٹیگری میں آ گیا؟ ہمارا اسم کی کیٹیگری میں آ گیا. ٹھیک ہے. جی جی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو بھی سیکھیں گے آگے کہ ہمیں کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں. ابھی ہم بیسک پہچان سیکھ رہے ہیں. تو آپ کو ال مل جی گیا، اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. ٹھیک جی ہے. شروع میں ال آ گیا وہاں ہاں پہ. آپ نے اس جی پہچان کو یاد رکھا ہے. چلیں بارک اللہ فیکی جی زہرا. نایاب پلیز جی آپ آئیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نایاب دیکھیے گا آپ کے جی سامنے جو جی آیت آئی ہے آپ کے سامنے. مجھے بتائیے آپ کو کوئی اس میں اسم مل رہا ہے؟ جی میم یہ القرون. ویری گڈ بارک اللہ فیکی نایاب. جی ماریا پلیز انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماریا دیکھیے گا آپ کو کوئی اسم مل رہا ہے اس آیت میں؟ میم یہ آیات نا؟ ال ہے، نہیں تنوین ہے، نہیں تائے مربوطہ. نہیں. تنوین کہاں آ رہی ہے اس میں دیکھیے؟ تنوین بینات. گڈ. تو یہ ہے ہمارا اسم. بارک اسم اللہ فیکی. بینات ہے. بارک اللہ فیکی. ماریا فرزانہ جی آ جائیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے گا فرزانہ جی آپ کو کوئی اس آیت میں اسم مل رہا ہے؟ لا يجوز لقاءنا. یہ بقرآن تنوین ہے نا اس کے آخر میں. جی ویری گڈ بارک اللہ. بقرآن. اچھا میں 1 منٹ میوٹ کر رہی ہوں اور یہ مجھے لیپ ٹاپ کو یو پی ایس پہ لگانا ہے، لائٹ نہیں آ رہی. 1 منٹ بس. کون تھی؟
तस्मिया आप आ जाइए प्लीज। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तस्मिया चेक कीजिए, इसमें कोई आपको इस आयत में इसम नजर आ रहा है? बताइए प्लीज। वला हम्म वला वला जरा तुम, हम्म उसमें पर राल नहीं है। माँ तलव तुहू, नहीं। दोबारा नोट कीजिए, गौर कीजिए। वलो इंशाअल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जलाला मिल रहा है? मैं अला हम्म जी लफ्ज़ लफ्ज़ जलाला अल्लाह मिल रहा है ना? तो यही है आपके पास जी इसम। मैम। बारकल्लाहु फीक जी। अल्लाह साइमा नदीम प्लीज आ जाइए। जज़ाकल्लाह। वाइया कीजिए। जी देखिएगा साइमा, आपको इस आयत में कोई इसम मिल रहा है? मैम जो आपने निशानियां बताई उसके मुताबिक उम्रन लग रहा है मुझे। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। मुझे ये बताइए, आपने इसमें क्या जो निशानी है उसमें पहचान की है? जरा वो मैम मैंने लास्ट में तनवीन देखा। वेरी गुड, ठीक है। ये कहलाएगी फतहातैन या दो जबर की तनवीन। यस मैम, बारकल्लाहु फतहतैन को देखा। बिल्कुल, आपने पहचान याद रखनी है। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। चले रूही जी इंशाल्लाह आ ताला मैम। जाइए मैम अभी लेकिन मुझे जो आपने हम्म बैयनात वाली बताई ना, वो तो सिफत नहीं होएगी अली फरता वाली। मैम। जो सबसे पहले आई थी आयातु ना बैयनातिन, ऐसे हम्म कोई एक आयत आई थी, तो उसमें आप बैयनातिन के आगे तनवीन था, यानी कि कसरतैन थी। तो आप वो बिल्कुल वो इसम के मुताबिक उसकी निशानी बन रही थी, बट वो सिफत नहीं होगी कि हमारी निशानियां अच्छा, सिफ्त वाला वाजिया। टॉपिक। हाँ वो वाला टॉपिक अभी आगे आएगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी सिफ्त कहाँ है, ठीक है? चलें जी, आ जाइए रूही जी, आप आ जाइए प्लीज। चलें। अच्छा रूही जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी कुछ मैं आप लोगों के सामने इसम लेकर आऊंगी और उसमें आप लोगों ने पहचान करनी है, ठीक है? तो देखिएगा, जी तनवीन अल गोलता, और इसमें हमारे पास आ जाएगा फिर अलिफ और ता, ठीक है? अच्छा है स्टूडेंट सब। चलो एक एक करेंगे सारे हम इसको। पहला आपके सामने जो इसम आ रहा है किताबुन, इसमें क्या पहचान है इसम होने की, और इसे मैं किस कॉलम में लेकर जाऊंगी मुझे वो भी आप। तनवीन है। तो इसको मैं किस कॉलम में लेके आऊंगी मैम इसमें इसम होने की जी? आपकी आवाज। तनवीन किस में मैम? तनवीन के टॉपिक। तनवीन में। ठीक हो गया जी। अच्छा मैं इसको पहले पूरे को ले आती हूँ। जी बारकल्लाहु फीकी रूही जी। सहरिश जी आप आ जाइए, माशाल्लाह आप लोग अच्छी पहचान कर रहे हैं। सहरिश प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए, आपको देखे रिक्वेस्ट आई होगी। चले सहरिश आ जाएंगी बाद में उतनी देर। मुस्कान आप आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्कान नाफिजातुन, तो अब आप मुझे गोल बताएं। चावल। गोल ताके कॉलम में मैं ले जाऊंगी। चलें, गुड हो गया, बारकल्लाहु फीकी। फौजिया जी आप आ जाइए प्लीज, माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके सामने आ रहा है अल मदरसाती, क्या पहचान है इसकी? मैम इसमें दो पहचान है, एक तो है अलिफ लाम और दूसरा है ताए मरबूता। ठीक हो गया, कॉलम में जाएगा मैम। ठीक हो गया, वेरी गुड। दोनों कॉलम्स में जा सकती हैं, बाय मिस्टेक एक में ही आए। बारकल्लाहु फीकी। रुमैशा आप आ जाइए प्लीज। मैम मैं कुफार वाला बताऊं? जी कुफारन को बताइए, ये किस कैटेगरी में आएगा और क्या पहचान है इसमें इसम की? मैम इसमें तनवीन की पहचान है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी।
ओके, ठीक है। थैंक यू रुमैशा, बारकल्लाहु फीकी। अब आगे आ जाइए। समीना जी आप आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी समीना जी, बुयूतिन किस कैटेगरी में इसको लेकर आएंगी आप? ये तनवीन की कैटेगरी में। बिल्कुल ठीक हो गया, बारकल्लाहु फीकी, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा ये सॉरी आगे चला गया, ये तनवीन की कैटेगरी में ही लाएंगे। ठीक है, यास्मीन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यास्मीन राजपूत। अच्छा, मफरूक एम कादरी, मफरूका आप हैं, देखिए अनम्यूट कीजिए। या जी मफरूका आप ही हैं इधर भी? जी जी मैम। अच्छा चले कीजिए। अल बिनती किस कैटेगरी में लेकर आएंगे इसको? अल अल है ना मैम? तो किस कैटेगरी में अल लाऊंगी? की कॉलम अल की, ठीक हो अल गया। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। ओके, आलिया जी आ जाइए प्लीज, आलिया मुनीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आलिया जी देखिएगा, मुझे बताइए अल खुतुवाती, इसमें इसम की क्या पहचान है और कौन से कॉलम में लेके जाएंगे इसको? इसमें अलिफ लाम है और ये अलिफ लाम की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, और भी कोई पहचान है? तो अलिफ ता है इसमें। दोनों दोनों में, ठीक है। अल ठीक भी आ गया और अलिफ ता भी आ गया, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी आलिया ठीक। जी। साइमा जी आ जाइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिजातुन, जदीदतिन, ठीक है। हाफिजातुन। हाफिजा हम्म मदमूम, लास्ट पे दो पेश यानी तनवीन है, जिसकी वजह से जो है तनवीन वाली कैटेगरी में आएगा फर्स्ट कॉलम में। और क्या पहचान है इसमें? अलिफ और ता। ठीक है, दोनों चीजें आ गई जी। आपके पास, ठीक है। आगे है जदीदातिन, ये भी बता दीजिए आप। जदीदतिन भी तनवीन आ रही है, दोनों में इसमें कसरत है, उसकी हम्म वजह से जो, और ताई मरबूता भी है, और हम्म दोनों कैटेगरीज में आएगा फिर ये चलो, तनवीन में भी और ताई मरबूता में भी। गुड हो गया, लेकिन मेन हमारे पास अभी तनवीन आ रही है, ठीक है, तो हम इसे तनवीन में ले जाएंगे। ठीक हो गया। चले, जी बारकल्लाहु जी। फीकी साइमा, वेरी गुड। बतूल आ जाइए प्लीज। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बतूल कीजिएगा, आपके पास है ज़ालिमुन, सॉरी ज़ालिमिन। जी मैम ये तनवीन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। अगला भी कर दीजिए, राजुलुन। ये भी तनवीन में आएगा। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। सलमा जी प्लीज आ जाइए। सलमा वाहिद। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुमिनातुन किस कैटेगरी में आएगा सलमा जी, क्या पहचान है? ता मरबूता। ठीक है, हम इसे ताय मरबूता की कैटेगरी में ले जाएंगे। ठीक हो गया। एक और देखिएगा, अशमसु। अल में आएगा। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। अनम यस। आ जाइए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अनम देखिएगा, आपके पास इसम आ रहा है उदुनुन। तनवीन में आएगा मैम, लास्ट में दो पेश है, तनवीन में आएगा। राइट। एक और देखिएगा, अल मुस्लिहातु। मैम ये अलिफ लाम है स्टार्टिंग में, और लास्ट में अलिफ ता है, तो दोनों में आएगा। गुड हो गया, बारकल्लाहु फीकी। फुरकाना शमशाद प्लीज आप आ जाइए। फुरकाना जी माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फुरकाना देखिएगा, मक्कातु। मक्का तो ता है इसमें।
ता की कैटेगरी में आएगा ये, गोलता की कैटेगरी में। कोलता। ठीक है, एक और कर दीजिए, अल कुतुबु। अल इसमें कुतुबु। अलिफ लाम है तो ये अलिफ लाम की कैटेगरी में आएगा। ठीक हो गया, बारकल्लाहु फीकी फुरकाना जी। शाज़ इमरान आ जाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिएगा हमारे पास क्या आता है, अल काफिराती। अलिफ लाम के उसमें आएगा मैम, और क्या पहचान है इसमें? और अलिफ ता के उसमें भी आएगा। ठीक हो गई, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये जी आपकी आज की प्रैक्टिस सेशन थी। ठीक है, और बहुत सिंपल सा लेक्चर था, कोई मुश्किल नहीं था। अब ये आप लोग बिल्कुल ज़हन में ना रखिएगा कि ग्रामर कोई मुश्किल टॉपिक है, कहीं से मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हमें अपनी तवज्जो देनी है, थोड़ा सा हमें फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको जो है याद होती जाएंगी। सिर्फ अच्छा, बुयूतिन मैंने बाय मिस्टेक उसको मेरे से जो है रॉन्ग कॉलम में चला गया था। अब मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।